So let us go to the next point of this. God actually wants you to be rich. और इसके अगले कदम पर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर सचमुच चाहता है कि आप धनी बने। Bible teaches on wealth. बाइबल हमें धन के विषय सिखाता है। Because some rich are wrong, some poor are right, it doesn't mean that God is otherwise. और क्योंकि कुछ धनी लोग गलत है और गरीब लोग सही है, उसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर यही चाहता है। God has a desire, God has a plan over your life. परमेश्वर की एक इच्छा है, उसकी एक योजना है आपके जीवन में। God has the original plan of God is plenty and overflow. और सबसे मुख्य जो योजना परमेश्वर की है कि वो बहुतायती में आपके जीवन में और बढ़कर उमड़कर बाहर निकल पाए। Yes, if God has no plan of prosperity and riches and overflow in your life, why should He give you the power to make wealth? और अगर परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि आपके जीवन में बहुतायती आए, तो वो आपको क्यों सामर्थ्य देता कि आप धन बना सको? Deuteronomy chapter 8 verse 18 says, He gives you the power to earn wealth. व्यवस्था विवरण 8:18 ये कहता है कि वो आपको धन बनाने की सामर्थ्य देता है। If that can take you away from God, why should He give you the power to get it? अगर वो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, तो वो आपको उससे कमाने की ताकत क्यों देगा? He should have given you power to become poor. वो आपको गरीब बनने की सामर्थ्य दे देता। My friends, you need to understand God correctly. प्रिय दोस्तों, आपको परमेश्वर को सही तरीके से समझना है। Not some pessimistic negative preacher how he is talking. He should not interpret the Bible. और कोई नकारात्मक व्यक्ति ऐसे प्रचारक बाइबल के बारे में व्याख्यान ना करे। Nobody should interpret Bible and bring hopelessness and poverty and all these type of things. कोई भी बाइबल पढ़कर यहाँ पे निराशा या गरीबी को लेकर ना आए। Then why so many believers are poor? तो क्यों अब इतने सारे विश्वासी लोग गरीब हैं? It bothers me why people are poor. और ये मुझे बहुत चिंता होती है कि इतने विश्वासी गरीब क्यों हैं? Many people they get healed in a time of prayer. और बहुत से लोग प्रार्थना के समय में अपनी चंगाई पा लेते हैं। Okay. Now many believers they think they will become rich during time of prayer. और बहुत से विश्वासी लोग ये समझते हैं कि उसी प्रार्थना के समय वो धनी भी बन जाएंगे। And some prophetic preachers also they say, when I pray, say a prophecy, it is going to make you into rich man. और कुछ भविष्यवक्ता भी ये कहते हैं कि जैसे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर आपको धनी बना देगा। Prophets are great people. और ये भविष्यवक्ता महान लोग हैं। But when they play God in people's life, then it is not right. जब वो परमेश्वर बनने देखते हैं लोगों के जीवन में, तो ये बात सही नहीं है। So we should be very clear about the principles said in the word. और इसीलिए हमें बड़ा साफ समझ होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सिद्धांत का। Many people are not poor because they have not understood when riches will come in their life. और बहुत से लोग आज भी गरीब है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि कब धन उनके जीवन में आएगा। Yes, today I am going to break that point. और आज इस विषय को मैं तोड़ने वाला हूँ। Many people are thinking why the money is not coming in my life. और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों पैसा मेरे जीवन में नहीं आ रहा। And some people are saying money is coming but it is going away. Then how to stop it? और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन ऐसे ही निकल जाता है, उसे रोके कैसे? My friends, let me tell you, Bible talks about money as a kosuru. बाइबल हमें पैसों के बारे में बताता है कोसरू के नाम पे। Yeah. What is a kosuru? ये कोसरू क्या होता है? This is said in my mother tongue, Tamil. ये तमिल भाषा के एक शब्द है। Kosuru means a gift given free with a purchase. कोसरू का अर्थ है कि एक ऐसा भेंट जिसे मुफ्त दिया गया है लेकिन दाम चुका दिया है। Please understand this. इस बात को समझे। Many people, their prayer is, how I can become rich. बहुत से लोगों की प्रार्थना ये है कि कैसे मैं धनी बन पाऊं। The question is wrong. वो सवाल ही गलत है। First of all, you should stop that question. That question is going to take you in a land of poverty. वो सवाल को ही आपको पहले रोकना है, वो आपको गरीबी के एक स्थान पर लेकर जाएगा। Many people want to be rich. I tell you, that is not a good ambition. और बहुत से लोग धनी बनना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं ये कोई अच्छा लक्ष्य नहीं है। They want to have lot of cash. वो It's चाहते हैं not कि good for you to have lot of cash. वो चाहते हैं कि बहुत सारा रुपया उनके पास रहे, और ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। Okay, because the Bible always says riches
will be added to you. क्योंकि बाइबल हमेशा ये कहता है कि धन आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। Becoming rich is never a direct way with God. और धनी बनना ये कोई सीधा रास्ता नहीं है परमेश्वर की तरफ। You have to be something else to become rich. आपको कुछ और बनना होगा ताकि आप धनी बन पाए। I will see a very classic example. और एक अच्छा उदाहरण हम देखेंगे। Okay, let us turn your Bibles to 2 Chronicles chapter 1 verse 11. दूसरा इतिहास 1:11 को देखेंगे। Now this is talking about a very important conversation which is recorded in the Bible. और बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा यहाँ पर लिखी गई है। It is a conversation between God and a young man. और परमेश्वर और एक जवान व्यक्ति के बीच में जो चर्चा चल रही है वहाँ वो उसको यहाँ लिखा गया I think all young people should read this and learn from this. और जितने भी जवान लोग हैं वो इस वचन को पढ़े और इससे सीखे। Now God is telling this young man called Solomon, because this was in your heart and you have not asked riches or wealth or honor or life of your enemies, nor have you asked life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people over whom I have made you a king. Wisdom and knowledge are granted to you, and I will give you riches, wealth, honor, such as none of the kings have had who were before you, nor shall any after you have the like. दूसरा इतिहास 1:11 वचन। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा को, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। Now, this is a young man who asked God, give me wisdom and understanding. अब यहाँ पर एक जवान व्यक्ति है जो परमेश्वर से मांगता है, मुझे ज्ञान और समझ दे। Now here God is telling him, I will give you wisdom and knowledge, and I will give you riches, wealth and honor. और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान तो जरूर दूंगा, लेकिन इसके साथ मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। So what Solomon asked is wisdom, understanding and knowledge. और जो सुलेमान राजा ने मांगा वो था बुद्धि, ज्ञान और समझ। He was not asking for riches. वो धन के लिए नहीं प्रार्थना He कर was रहा, not asking for wealth. वो संपत्ति के लिए नहीं मांग रहा, He was after wisdom, understanding and knowledge. वो बुद्धि, ज्ञान और समझ के पीछे था। Now, a 30-year-old man, young man, अब एक 30 साल का एक जवान व्यक्ति, if you go and ask him what he will say. अगर आप उससे आके If सवाल God पूछते goes हो, to such a guy and ask him, what do you want? अगर परमेश्वर उसे सवाल पूछता है तुझे क्या चाहिए, What he will say? वो क्या कहेगा? I should have said, I want a very big house in the center of Mumbai city. और मैं शायद And I मांगता, want 3-4 BMW cars or a Mercedes Benz, a lot of servants. I should have said that way. और मैं अगर मुझसे पूछा गया होता शायद मैं कहता कि इस मुंबई शहर के बीच में बड़ी सी एक बंगला में रहा हूँ, कई सारे गाड़ी हूँ। Probably if you are a very holy man, you should have said, Lord, when I die, I will go to heaven. और अगर कोई पवित्र व्यक्ति है और वो कहेगा कि परमेश्वर जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में ही जाऊं। But here 30-year-old man, he should have, I don't know what made him to ask for wisdom, understanding and knowledge. लेकिन यहाँ पे जो 30 वर्ष का ये व्यक्ति है, ये इसने पता नहीं कैसे मांग लिया कि मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। He never asked anything of this world. और इस दुनिया का उसने कुछ नहीं मांगा। He asked wisdom, understanding and knowledge. और उसने ज्ञान, समझ और बुद्धि के विषय So में मांगा। please understand, he is actually educated and trained. और इस बात को समझ लो कि उसको किसी ने तैयार किया है, उसको सिखाया है। He had a teacher or a mentor or a father. और उसका कोई तो शिक्षक था, कोई उसका सलाहकार था, कोई पिता था। I can read between lines. There is somebody behind him. और मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि इसके पीछे कोई तो है। Otherwise, how can a 30-year-old man ask this? नहीं तो एक 30 वर्षीय एक व्यक्ति कैसे ऐसा मांग सकता And है? God is also revealing his plans. Hey, I will give you wisdom, understanding and knowledge. Apart from that, I will give you lot of rich wealth, everything. Nobody will be like you ever before or after.
और परमेश्वर भी अपनी योजना वहां पे दर्शा देता है कि मैं तुम्हें बुद्धि ज्ञान और समझ तो दूंगा ही, उसके साथ धन संपत्ति ऐश्वर्य और ऐसे धन दूंगा जो पहले तुम्हारे से पहले किसी के पास था नहीं और तुम्हारे बाद किसी के पास So- होगा भी नहीं। So please understand, if you're financially bankrupt or in lack, there is something else which you need to get into to really become financially wealthy. और इस बात को समझे, अगर आप बड़े ही कंगालपन की अवस्था से गुजर रहे हैं, आपको किसी अन्य वस्तु में प्रवेश करना है ताकि आप इससे बाहर विजयी होकर निकले। Because the truth of the matter is, God will never make a fool rich. क्योंकि हकीकत की बात यह है कि परमेश्वर एक मूर्ख को कभी भी धनी नहीं बना सकता। There are many people who are holy fools. और बहुत से लोग पवित्र मूर्ख है। Sorry for my language, but I don't know how to put it better. मेरी भाषा के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे इसको सही तरीके से God बताऊं। will never make a fool as rich man. परमेश्वर एक मूर्ख व्यक्ति को कभी भी एक धनी व्यक्ति नहीं बनाता, Because fool's money can be used by the devil for his kingdom. क्योंकि एक मूर्ख का जो पैसा है वो शैतान अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। Many times we are not able to cut across into that riches because we are not wise, understanding and knowledgeable. और कई बार हम ऐसी एक बढ़ोतरी में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि हमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। So if you are going to God for riches or for prosperity, you better ask him, Lord, make me wise, understanding and knowledgeable. तो अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे तू बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। Because you can never get kosru anywhere. क्योंकि आप कोसरू कहीं से भी नहीं प्राप्त कर सकते। I'll give you an example. एक उदाहरण मैं दूंगा। See, we have tea in these cups. देखो, हम चाय इस कप में पीते हैं। This is a cup which is given to us by a coffee product, coffee cup. और एक कॉफी के कंपनी ने इस कप को हमें दिया है। If you want this cup, you will never get this cup anywhere in the world. अगर आप इस कप को प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। You will not have a red square cup. When you drink coffee in this, coffee tastes better. और ऐसे लाल रंग का चौरस ये कप आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और जब आप इससे कॉफी पीते हो तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। I'm not doing marketing for this coffee product, but I'm trying to explain to you a very important truth. और मैं कुछ इस कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी एक सच्चाई को आपको बताना चाहता हूं। If you want this cup, अगर आप इस कप को you चाहते need to हो, buy that coffee powder. आपको वो कॉफी पाउडर खरीदना होगा। That's it. इतना This ही। cup it's given to you free. ये कप तो आपको मुफ्त दिया जाता है, For the coffee, you need to pay. लेकिन वो कॉफी खरीदने के लिए आपको दाम चुकाना होगा। Many people, they are asking God for this cup. और कई लोग परमेश्वर को इस कप के लिए मांग रहे हैं। They don't want coffee. वो कॉफी नहीं चाहते। They cannot have the joy of drinking coffee in a beautiful square cup. लेकिन वो ऐसे एक खूबसूरत से चौरस कप के अंदर कॉफी पीने का आनंद वो नहीं ले पाएंगे। Every day I have the joy of drinking coffee from this cup. और हर दिन मैं आनंद उठाता हूँ इस चौरस लाल रंग के कॉफी के कप में से कॉफी पीकर। You want to have the same joy? क्या आप भी यही आनंद उठाना चाहते हो? If you say yes, you need to buy that coffee powder. अगर आप हाँ कहते हो तो आपको वो कॉफी पाउडर पहले खरीदना होगा। Then you can have the joy of having coffee in this cup. और फिर आप इस कॉफी कप में से कॉफी पीने का आनंद उठा सकते हो। Many people want to be rich, बहुत से लोग धनी बनना चाहते हैं, but riches are free. लेकिन धन जो है वो तो मुफ्त है। But you need something else to become rich. लेकिन आपको किसी अन्य वस्तु की जरूरत पड़ेगी ताकि आप धनी बन सके। If you really want to be rich, you need to be wise, understanding and knowledgeable. अगर आप सचमुच धनी बनना चाहते हो तो आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरपूर होना When you चाहिए। talk like a fool, think like a fool and behave and act like a fool and react like a fool, I tell you, nowhere you can have riches in your life. और अगर आप मूर्ख के समान बात करते हो, सोचते हो, व्यवहार करते हो, तो कहीं पर भी अपने जीवन में आप धन संपत्ति को नहीं पाओगे। When every time you open your mouth, somebody says, shut up. जब भी आप मुंह खोलते हो कोई आपसे कहता है तुम चुप बैठ जाओ। Something is wrong with us. हमारे से कुछ तो गलत है। I think we should become wise. शायद हमें और बुद्धिमान बनना है। You need to be wise people. Because you know what the Bible says? Wise people, God gives money. क्योंकि बाइबल ये कहता है कि ज्ञानी लोगों को परमेश्वर पैसा देता है। Proverbs 14:24.
नीति वचन 14 उसका 24वां वचन, Underline this. इसको निशाना बना के रखे, Okay? Memorize this. उसको याद कर ले। Open your Bible. See Bible. this. Wise people, they get a gift. They get a crown. और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें मुकुट दिया जाता है। बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी ना. For wise people, God gives a crown. ज्ञानियों को परमेश्वर एक मुकुट देता है। Now, crown is a symbol of authority, is a symbol of show, it's a symbol of beauty. It has many meanings. और ये जो मुकुट है इसका ये एक चिन्ह की तरह है, वो आदर का है, सम्मान का है और अधिकार का है। Bible says the crown of the wise is their riches. बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि ज्ञानियों का धन उनका मुकुट ठहरता है। Yes. So God gives you a crown to the wise, that is riches. और परमेश्वर एक मुकुट देता है ज्ञानियों के लिए और वो है धन। So if you really want to be rich, you need to be wise. अगर आप सचमुच धनी बनना चाहते हो तो आपको ज्ञानी बनना होगा। Somewhere Solomon's mentor taught him the secret. कहीं तो सुलेमान के जो शिक्षक थे उन्होंने इस प्रकार उन्हें सिखा दिया था। So I'll tell you something. You all need somebody to teach you something. और मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी को भी सिखाने के लिए कोई ऐसा शिक्षक चाहिए। Today, some young people say, I am a self-made man. I won't listen to anyone. You are in danger. और आज कुछ जवान लोग ये कहते हैं कि मैंने ही अपने आप को रचा है, मैंने अपने आप के जीवन को बांधा है, बनाया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं आपसे कहता हूं आप खतरनाक स्थान पे हो। If you don't have a mentor or a teacher or a spiritual father, you can lose lot of good blessings in your life. अगर आपके कोई सलाहकार नहीं है, शिक्षक नहीं है या आत्मिक पिता नहीं है तो बहुत सारे भले आशीष को आप खो दे सकते हो। You may be very hardworking, very intelligent and enterprising. आप शायद बहुत ही मेहनती हो, बहुत अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति हो, But only your mentor can see where you are going. लेकिन केवल आपका सलाहकार ही देख सकता है कि कहां आप जा रहे हो। So when your mentor comes and tells you, hey, you will become this, don't look here and there. Why are you trying to impress me and encourage me? तो अगर आपका शिक्षक आके आपसे कहता है कि तुम ये बनने वाले हो तो ऐसे मत सोचना, इधर उधर देखकर मत कहना कि तुम मुझे केवल खुश करने के लिए बातें कर रहे हो। Sometimes I go and tell people, you will become this, you will become that. कई बार ऐसे होता है कि मैं कुछ लोगों के पास जाकर मैं कहता हूँ कि तुम ये बनने वाले हो, तुम वो बनने वाले हो। Because as a mentor I can see your future. क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारे भविष्य को देख पा रहा हूँ। Yes, as a father I can see many futures which is in front of you. एक आत्मिक पिता होने के नाते कई लोगों के भविष्य को मैं देख पा रहा हूँ। I don't say anything to impress anyone. मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ बातें नहीं कह रहा हूँ। But you have to walk when I say something like that. लेकिन जैसे ही मैं तुमसे ऐसी कुछ बातें कहता हूँ तुम्हें उसी दिशा में चलना है। You have to hold that and walk in it. आपको उसे धर कर आपको उसी दिशा में चलना है। Yes, my spiritual father has told me many things. मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कई सारी बातें कही है। I am holding on it. मैंने उसे धर कर रखा है। Days will come, I will realize that. और ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इसको समझूंगा। One day David came to Solomon. He said like this, hey, one day God will come and talk to you. और एक दिन दावीद ने सुलेमान के पास आकर कहा कि एक दिन परमेश्वर तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करेंगे। Because when David was young, God told him about his son. क्योंकि जब दावीद जवान था तो परमेश्वर ने उसके पुत्र के विषय में उससे कहा। Yes, so David knew exactly this is going to happen. और इसी कारण दावीद निश्चित तौर पर जानता था कि ऐसे ही होने वाला है। And what God will come and ask also David knew. और परमेश्वर क्या पूछने वाला है ये भी दावीद जानता So था। David exactly told Solomon, he instructed him everything. और दावीद ने उसके सारी बातें उसको बता दी और क्या करना है उसे बताया। About this Solomon is saying in Proverbs chapter 4, if you are really want to be, if you are curious, you can read Proverbs 4 to know what David told. और नीति वचन अध्याय 4 में ये विषय के बारे में लिखा है। अगर आप जानना चाहते हो कि दावीद ने सुलेमान से क्या कहा तो नीति वचन के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। So you need understanding to become rich. आपको समझ की जरूरत है ताकि आप धनी बन सकें। You need to be a wise person to become rich. आपको एक ज्ञानी व्यक्ति बनना होगा अगर आपको धनी व्यक्ति That is बनना a है। qualification of becoming rich. और धनी बनने का यही एक क्वालिफिकेशन So है। when you ask the right question. तो जब आप सवाल पूछे तो आप सही सवाल पूछना। Don't tell yourself, how can I become rich? तो आप ये मत पूछना कि कैसे मैं धनी बन सकता हूँ। You should ask, how can I be more wise? आपको पूछना है कि मैं कैसे अधिक ज्ञानी बन सकूं। I'll tell you these things no one will teach you.
मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी बातें कोई आपको सिखाता नहीं है। There are a lot of rich people around you. कई सारे धनी लोग आपके इर्द गिर्द हैं। You always envy them. आप हमेशा उनकी ईर्ष्या करते हो Think how good it will be if I have those things which they have. और सोचते हो कि कितना अच्छा होता अगर मेरे पास वो चीजें होती जो आज उनके पास है। Thinking. You have to, the day you depart will come. और ऐसे सोचते सोचते जो आपके इस पृथ्वी से जाने का जो दिवस है वो आ जाता है। Many people die that same way. और बहुत से लोग उसी प्रकार मर जाते They हैं। don't know the secret of becoming rich. वो धनी बनने का रहस्य नहीं जानते। All that God has is always a secret. Nothing is open. और जो कुछ परमेश्वर के पास है वो उसमें कोई रहस्य नहीं है। सारा रहस्य ही है। रहस्य के अलावा गॉड के पास कोई नहीं, कुछ नहीं है। Always understand this. इस बात को All that what God has is always under the surface. और जो कुछ परमेश्वर के पास है वो हमेशा ऊपरी भाग के नीचे होता है। Nothing is on the open. वो खुला किसी के लिए भी नहीं है। Because God always gives to those people who search for that riches. क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को देता है जो इन धन संपत्तियों की खोज करते हैं। So the questions need to be right to get the right answers. और इसलिए सही सवाल करना जरूरी होगा ताकि आप सही जवाब प्राप्त कर सके। If your questions are wrong, then I tell you, your answers will be gravely wrong. अगर आपके सवाल ही गलत होंगे तो आपके जवाब भी एकदम गलत निकलेंगे। Here it talks about, Proverbs chapter 3 verse 9 talks about, you honor your God. नीति वचन 3:9 में कहता है तुम अपने परमेश्वर का आदर करो। Then your barns will be filled with plenty and your vats will overflow. और फिर तुम्हारी जो कोठी है वो पूरी बहुतायती से भरी जाएगी। So your question should be, how should I honor God? तो आपका सवाल होना चाहिए कैसे मैं परमेश्वर को आदर करूं? When you honor God, He will honor you. जब आप परमेश्वर का आदर करते हो वो आपके आदर करता है। When you honor the devil, he will dishonor you. और जब आप शैतान का आदर करते हो वो आपका अनादर करता है। When you obey the word, you honor God. जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो तो आप परमेश्वर का आदर करते हो। When you deal with the word like a trash, I tell you, devil will come in the play to dishonor you. और जब आप वचन को एक कूड़ेदान के समान आप बर्ताव करते हो तो शैतान निश्चित तौर पर आएगा और वो तो आपके जीवन में कार्य करेगा। Two words, plenty and overflow, is the mark of a life of a child of God. और दो शब्द बहुतायती में और उमड़ कर बाहर गिरना ये दोनों परमेश्वर के संतानों के लिए हैं। God never said poverty and lack will be the lifestyle of a child of God living a holy life. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि गरीबी और घटी का होना ये एक परमेश्वर के संतान का जीवन में निश्चित तौर पर होगा जो एक पवित्र जीवन बिता रहा है। Today many people, they give to get. आज बहुत से लोग देते हैं ताकि वो प्राप्त करें। No, you should give to honor Him. आप दे ताकि आप परमेश्वर का आदर करें। Many people are paying tithe. बहुत से लोग दशमांश देते हैं, They give offering. वो भेंट भी देते हैं। It's because of a law, rule, or the pastor's teaching. और वो क्योंकि ऐसे लगता है कि कायदा कानून है या पासबान ने सिखाया है। When you pay your tithe to honor Him, और जब आप अपना दशमांश देते हो आप उसका आदर करो। that's what it means. और यही उसका अर्थ है। Many people don't give to honor God. बहुत से लोग परमेश्वर का आदर करने के लिए नहीं देते। They are working because their lighthouse leader taught them first fruit देने का, then tithe देने का, offering देने का. क्योंकि वो इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके घर कलीसिया के अगुओं ने उन्हें सिखाया है कि दशमांश देना है, पहले भेंट देने हैं, सारा कुछ अर्पण करना है। The mindset is not I should honor my father. और ये मनस्थिति ऐसी नहीं है कि मुझे अपने पिता का आदर करना है। That is why your question should be right. इसी कारण आपका सवाल जो है ये सही होना चाहिए। Okay, let me read one more word by which you can become prosperous. और एक और वचन मैं पढ़ूंगा जिससे कि आप बहुतायती के जीवन बिता सको। Okay, Job 36:11. आयुब 36वां अध्याय 11वां वचन। If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। Some people don't listen only. कुछ लोग सुनते ही नहीं है, बात करते रहते हैं। सारा लोग सुनते हैं, सुनने का उनको, वो बात करते रहते हैं। But the Bible says when you obey and serve God. लेकिन बाइबल ये कहता है जब तुम बातों को सुनकर उसकी सेवा करते हो, When you obey and serve God, then you will spend your days in prosperity and
ears in pleasures. जब तुम सुनकर परमेश्वर की सेवा करते हो तो बाइबल कहता है कि तब तुम कल्याण से जियोगे और अपने सारे आयु सुख से बिताओगे। Yeah, some people are living in Kalyan. कुछ लोग कल्याण में ही रह रहे हैं, Huh? But they have no Kalyan. लेकिन उनके जीवन में कोई कल्याण नहीं है। How to have Kalyan in our life? और कल्याण कैसे हम अपने जीवन में पाए? Whether you live in Kalyan or in Mumbai, चाहे you need to serve God चाहे आप कल्याण में रहते हो या मुंबई में, आप परमेश्वर की सेवा करें and listen to Him. और उसकी बातों को सुने। God talks. परमेश्वर बात करता है। How God talks? कैसे परमेश्वर बात करता है? Huh? Some people are thinking God will talk like that. और कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से सीधे आकाशवाणी करता है। God doesn't talk like that. परमेश्वर ऐसे ही ऊपर से बात नहीं कर रहा है। God talks to us through someone who is a well-wisher. परमेश्वर हमारे कोई भला चाहने वाले लोगों के मुख से बात करता है। When I was a small boy, God used to talk to me through my father and mother's words. और जब मैं एक छोटा बालक था तो परमेश्वर मुझे अपने माता और पिता के मुख से बात करता था। Many things God has told me from my sister. कई सारी बातें मेरी बहन के मुख से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। There are many things she saved me from getting into. और कई सारे विषयों में उसने मेरी रक्षा की है कि मैं उसमें गिर नहीं There पड़ा। are many things God told me through my friends. और मेरे मित्रों के द्वारा परमेश्वर ने कई सारी बातें मुझसे की। Please understand, God talks to you by the word and God talks to you by the loving people around you. और इस बात को समझे कि परमेश्वर अपने वचन से बात करता है और उन लोगों से बात करता है जो प्रेम से भरे हुए When लोग you आपके obey and serve God, your life is prosperity and pleasure. और जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो और उसकी सेवा करते हो तो आपके दिन सारे कल्याण से और आपके वर्ष सुख से बीतते हैं। So what should your question be? तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? How can I serve Him? मैं कैसे उसकी सेवा करूं? How can I honor Him? मैं कैसा उसका आदर करूं? How can I serve Him? कैसे मैं उसकी सेवा करूं? Today God said, when you serve somebody, you serve me. परमेश्वर ने आज कहा है कि जब तुम किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करते हो You- तो मेरी सेवा करते हो। I'll tell you something, you can never serve Jesus. और इस बात को समझ ले कि आप कभी भी यीशु की सेवा नहीं कर How you सकते। can serve? He is not कैसे? here. वो यहाँ पर तो है नहीं। And He is the King of Kings, Lord of Lords. वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। What can you serve Him? आप किस प्रकार वहाँ पे सेवा कर What पाओगे? can you serve Him? और कैसे आप What उसे can you सेवा- give Him? क्या उसे दे पाओगे? That's why David said, I will lift up my cup of salvation and walk. That is what I can repay God with. और इसलिए दावीद कहता है कि मैं अपने उद्धार का प्याला को उठा के चलूंगा और यही तो मैं आपको वापस लौटा सकता हूँ। None of us, we are in any position to give God anything or serve God in any way. और हम में से कोई किसी की भी योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर की कोई सेवा करें या उसे कुछ दे सके। That's why in Matthew chapter 25 verse 40 He said, whatever you have done for these least, you have done for me. इसलिए मत्ती 25 उसके 40वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो छोटे से छोटे व्यक्ति को आपने जो किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। Yes. So we can serve God indirectly. और हम परमेश्वर की सेवा ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। That's why you need to, when you have to serve God indirectly, so you have to do so many things which will be interpreted as serving Him. और इसी कारण कई सारी बातें आपको करना है जो जिसका अर्थ होगा कि आप परमेश्वर की सेवा कर You रहे have to हैं। serve another man. आपको दूसरे एक व्यक्ति की सेवा करनी You होगी। have to serve another sister. एक बहन की सेवा करनी You have होगी। to serve your organization. आपकी संस्था की आपको सेवा करनी You होगी। have to serve your community. आपके समूह का आपको सेवा करना You होगा। have to serve your city and your nation. आपके शहर आपके देश की आपको सेवा करनी By होगी। serving all these people, you actually serve God. जब आप इनकी सेवा करते हो आप परमेश्वर की सेवा करते हो।